Hello everyone. As we know, ecology is a vast arena in biology. So today we are discussing about an important topic: population interaction. To study the relationship between prey, predator, other interaction and phenomena, and some other phenomena like camouflage, competition, mimicry, it is mandatory to study the theory of population interaction. There are so many examples of population interaction, and we are studying about here a few, such as mutualism, commensalism, predation, parasitism, amnesalism, and competition. So first of all, mutualism. As you earlier heard this word, mutual funds or mutual relationship. So mutual relationship, a relationship in which both participants get benefits. This interaction also known as symbiosis. You hear this word with example of lichen and mycorrhiza. So lichen, it is a mutual relationship between algae and fungi, and mycorrhiza, myco that means fungi, and hyza matlab roots, so root of higher plant and fungi. So in this interaction, as we earlier discussed that both individual get benefit. So lichen and mycorrhiza, one organism or one individual get benefit of raw material and other get food and shelter, means that both get benefits. One more example is flower and insect. All the plant and insect relationship is a mutual relationship, and in this picture we are showing about yucca plant and moth. As we know that flower get the benefit from the insect of pollination, and insect get nectar. In our next example, we will discuss about one more benefit for the insect. First, insect get nectar, and second, it gets safe and nutritive place for laying egg, so that in future their larva get easily nutrition and grow. Next example is Mediterranean orchid and bee. This orchid is very unique because to attract the insect, plants need fragrance, color or nectar, but orchid do not have this special kind of fragrance to attract the insect. So it is one more technique, and this technique is known as co-evolution. So in this example, this orchid transform their one petal into a bee. ये पेटल आपको एक बी की तरह दिखाई दे रही है, और ऐसे बहुत सारे मेडिटेरियन ऑर्चिड हैं, इन्होंने इसी तरह से अपनी वन पेटल को कन्वर्ट कर लिया है, सो दैट अब ये बी अट्रैक्ट होती है इस पेटल को देख के. ठीक है. सो मेडिटेरियन ऑर्चिड जो है वो बी को इसलिए अट्रैक्ट करती है ताकि इसका पॉलिनेशन हो सके. अब बदले में बी को कुछ नहीं मिलता दिख रहा, लेकिन बी जो है वो यहाँ पर स्यूडो कॉपुलेशन शो करता है, और सेक्सुअल डिसीज मीन्स दैट कि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है. सो बोथ गेट बेनिफिट्स. इन नेक्स्ट interaction is communalism. Communalism, in this interaction, one species get benefits and other is neither get harm nor benefit. So example is orchid as an epiphyte. So first of all, what is epiphyte? Here ep that means ऊपर and phyte मतलब plant. So orchid जब grow कर रहा है mango के ऊपर like this. So in this example we will see that कि मैंगो को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है ऑर्चिड से, बट ऑर्चिड को काफ़ी बेनिफिट है मैंगो का टू गेट न्यूट्रिशन एंड सेफ प्लेस. इन आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ फॉर द कैटल एंड इग्रेट.
शायद आपने आसपास कभी देखा हो। सो यहाँ पे जब कैटल ग्रेजिंग के लिए जा रही है, सो जैसे ही वो पुल्ड आउट करती है किसी ग्रास को, तो सॉइल के अंदर से लार्वा या कुछ वर्म्स जो है वो निकल आते हैं और ये इग्रेट उससे अपने खाने की तरह यूज़ कर सकता है। काऊ को इससे कोई बेनिफिट नहीं है इग्रेट से, बट इग्रेट को फ़ायदा है, वो चलता भी नहीं है, इसके ऊपर बैठा रहता है। बट अब इग्रेट ये इतना भारी भी नहीं है कि इसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, और ना ही कैटल को उन इंसेक्ट को खाना है। सो इग्रेट गेट बेनिफिट बट कैटल नाइदर गेट एनी बेनिफिट एंड नॉट हार्म्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी एनिमोन एंड क्लाउन फिश। क्लाउन फिश देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, देन सो मैनी एक्वेटिक एनिमल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड इट to get it as a food. But sea anemone, as you know that it is an example of nidaria. So इसके जो nidoblast हैं काफ़ी poisonous है यहाँ पे nematocyst, so कोई इसके पास नहीं आएगा। तो क्लाउन फिश बड़े easily इसके अंदर घूमती रहती है, तो इसको protection मिल जाती है। But sea anemone do not get any benefit and neither get any harm from this clownfish. Next is predation. So simply you know that one species get benefit and other harm, and so simple example about this is lion and deer. In this we can say that deer is harmed क्योंकि उसकी जान चली जाती है, and lion get benefit because उसको nutrition मिलता है. Another example is Calotropis. अभी एक प्लांट यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि ये किसका प्रेडेशन कर रहा है, बट कैलोट्रोपिस अगर ग्रो होता है तो अपने साइड में किसी भी और प्लांट को ग्रो नहीं करने देता. सो इट इज़ एज एन प्रीडेटर. अब लग रहा है हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ सेट है कि प्रीडेटर सिर्फ लॉयन यानी कि कोई भी कार्निवोरस हो सकता है. प्रीडेटर का एक एग्जांपल है काउ फॉर द ग्रास, क्योंकि वो घास को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है, तो इसलिए any cattle or grass is an also example of predation. Next is a phenomena as we earlier said, camouflage. ये भी इंट्रैक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो कैमोफ्लेज में क्या रहता है, टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर प्रे. सो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा किसी से छुपने के लिए ही चाहिए. जब आपने किसी को मारना है आपको तब भी छुपना पड़ सकता है, ठीक है. सो एज अ प्रीडेटर भी छुपना पड़ सकता है और एज अ प्रे भी. बट कैमोफ्लेज में हम जो कॉपी करते हैं वो सराउंडिंग की करते हैं. एज फॉर द एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि किसी की भी अमिताभ बच्चन की मिमिक्री सुना होगा. आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि अमिताभ बच्चन को कैमोफ्लेज कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन जो है वो एक लिविंग पर्सन है. तो मिमिक्री दैट मीन्स फॉर द लिविंग पर्सन, एंड कैमोफ्लेज जब हम किसी सराउंडिंग को करते हैं एज कैमिलियन. सो कैमिलियन अपनी जो उसकी सराउंडिंग है उसके जैसा कलर ले लेता है. पोलर बियर ने जो अपनी बॉडी कर रखी है वो भी अपनी सराउंडिंग की वजह से कर रखी है. सो इसीलिए ये कैमोफ्लेज के एग्जाम्पल है, ना कि मिमिक्री के. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट फिनोमिना इज मिमिक्री. सेम थिंग, आपको बचना है टू डिटेक्टेड फ्रॉम द प्रेडेटर और प्रे. बट इसमें आप क्या करोगे कि आप किसी लिविंग की कर रहे हो. अब किसी लिविंग की अगर हम कर रहे हैं तो उसमें ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो ताकि आपके पास कोई आए ना, या ये भी हो सकता है कि अगर आप प्रे हो तो आप किसी डिसटेस्टफुल के जैसा दिखने लगो, तो सामने वाला ये सोच के छोड़ दे कि ये तो खाने में अच्छा ही नहीं है, तो आपका प्रेडेटर शायद आपको ना खाए. एज इन द एग्जाम्पल ऑफ मोनार्क बटरफ्लाई. सो इसमें जो डिस्टेस्टफुल है वो मोनार्क है, तो जो वाइसरॉय आपके पास बटरफ्लाई है वो उसके जैसा दिखना शुरू कर देते हैं. तो प्रेडेटर सोचता है कि ये तो इसी के जैसी है और अब इसको नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनको लगता है कि ये वाली बटरफ्लाई है. सो सिमिलरली यहाँ पे डेंजरस के फॉर्म में है मिमिक्री. ये आपके पास एक पॉइजनस स्नेक है और ये नॉन पॉइजनस. तो अभी सिंपली देखने में इतना याद नहीं रहेगा. अगर अभी आप इस लेक्चर के बाद अब याद भी करोगे तो शायद आपको ये बैंड याद नहीं आए कि किस में कौन सा बैंड ज़्यादा है. इसमें रेड वाला ज़्यादा दिखाई दे रहा है और इसमें ब्लैक वाला. तो सिर्फ ये याद रहेगा कि हाँ रेड, ब्लैक और येलो का पैच है. तो आप जब भी स्नेक को देखोगे आपको लगेगा कि हाँ ये काफ़ी पॉइजनस है. सो मिमिक्री में हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कॉपी करते हैं. नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म. इन पैरासिटिज्म अगेन वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड.
यही सेम इंटरेक्शन हमने प्रेडेशन में भी पढ़ी है। देन व्हाट इज़ द डिफरेंस? पैरासिटिज्म के अंदर यहाँ पे एक वर्ड ऐड है, दैट इज़ लिव टुगेदर। प्रेडेशन में ऐसा कुछ नहीं है कि उनको साथ रहना है, क्योंकि वो मार के खा ही जाएगा। बट पैरासिटिज्म में पैरासाइट के लिए होस्ट का ज़िंदा रहना ज़रूरी होता है। सो हमें अभी लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट दैट व्हाट आर द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फॉर एन आइडियल पैरासाइट। सो एग्जाम्पल है लाइस ऑन ह्यूमन हेयर। तो इसमें लाइस जो है इनको बेनिफिट मिलता है, हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं और हमको नुकसान रहेगा। सिमिलरली लिवर फ्लूक, तो ये आपकी बॉडी के अंदर है, आपको हार्म करती है और लिवर फ्लूक को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। अभी टिक्स ऑन डॉग। सो ये टिक्स हैं, सिमिलरली टिक्स को न्यूट्रिशन मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है, और जो हमारी ये स्पीशीज़ रहती है डॉग, इनको हार्म होता है लाइक लाइसिस ऑन ह्यूमन हेयर। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पैरासाइट टाइप। देयर आर टू टाइप्स, one that is the endoparasite and that is exoparasite. Endo that means अंदर। सो इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, जैसे लिवर फ्लूक रहती है या बैक्टीरिया रह रहे हैं। एंड एक्सोपैरासाइट when they live on the surface of the host like lice या ticks, they live on the surface of the host. So feature of an ideal parasite, adhesive organ for the sucker, क्योंकि होस्ट बॉडी के अंदर है तो अटैचमेंट के लिए चाहिए। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर दिस डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज दे गेट देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, सो बिकॉज अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और नंबर इंक्रीज करना है, तो नेचुरल सी बात है होस्ट की जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म करेगी इसके पैरासाइट के नंबर को। सो पैरासाइट की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। रेसिस्टिविटी, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म, सो होस्ट के पास कितनी कैपेसिटी है उसकी इम्यूनिटी की, तो उसके हिसाब से उसको रेजिस्टेंस करने की पावर भी होनी चाहिए। जब किसी होस्ट की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे पैरासाइट डेवलप नहीं कर सकता। सो ये आइडियल पैरासाइट के फीचर हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। One more example is brood parasitism. Brood that means used for an egg. So इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बल्कि एग्स जो हैं दे आर लिव एज अ पैरासाइट। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे कुकू और क्रो का। जो क्रो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है कुकू के एग्स, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर सभी एग्स को खाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिटिव भी हैं और किसी भी प्रीडेटर के लिए एग को खाना ज़्यादा ईजी है एज़ कंपेरिजन टू किसी लिविंग बर्ड को या एनिमल को खाना, क्योंकि वो भाग सकते हैं बट एग कहीं भागेंगे नहीं। सो वो इजीली उनसे न्यूट्रिशन ले सकता है। सो जो क्रो है वो कुकू के एग को डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है। तो कुकू क्या करती है, अपने एग को क्रो के एग्स के साथ रख देती है। अब जो क्रो है वो इन सब एग्स को जो केयर करता रहेगा। तो अब यहाँ पर जो एग हैं दे आर पैरासाइट इन नेस्ट। सो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रूड, मतलब नेस्ट। ब्रूड पैरासाइट मतलब नेस्ट के ऊपर जो पैरासाइट है। नेक्स्ट इज एमनेसिलिज्म। सो एमनेसिलिज्म इट इज़ एन इंटरेक्शन इन विच वन गेट हार्म एंड अदर इज नॉट अफेक्टेड। सो एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम। ब्रेड के ऊपर बैक्टीरिया लगा जहाँ से पेनिसिलिन बना, और जब उसके ऊपर पेनिसिलिन ग्रो किया तो बैक्टीरिया की ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि पेनिसिलियम ने केमिकल को सिक्रीट किया विच डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया और डिक्रीज देयर ग्रोथ। सो पेनिसिलियम जो है वो ग्रो कर रहा है, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ बैक्टीरिया को मार के, बट बैक्टीरिया को हार्म हो गया। सो पेनिसिलियम इज़ नाइदर इफेक्टेड, और जो आपके पास बैक्टीरिया है उसको हार्म हो जाएगा। सो एमनेसिलिज्म एग्जाम्पल है इस तरह के इंटरेक्शन का। नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। जब हम क्लास में बात करते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, जब कंपटीशन होगा तो दोनों स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, दैट term is used with the word healthy competition. Otherwise
कंपटीशन में दोनों को ही हार्म होगा। एज़ फॉर द एग्जांपल कि 2 पर्सन अगर लड़ाई कर रहे हो तो अगर एक काफ़ी वीक भी हो तो ऐसा नहीं है कि वो एक भी पंच नहीं मारेगा, तो जो पावरफुल है एटलीस्ट उसको कुछ तो हार्म होगा। सो इन दिस इंट्रैक्शन बोथ गेट हार्म। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे अबिंगडॉन टॉर्टॉइस का गोट के आ जाने के बाद, तो दोनों की इंट्रैक्शन हुई और उसके बाद जो है आपके टॉर्टॉइस वो गायब हो गए। सो इसमें कंपटीशन में क्या होता है, हमेशा सपोज दैट कि 2 पर्सन की मैंने अभी कहा कि अगर उनकी फ़ाइट करा रहे हैं, सो जो आपका वीक वाला है वो नेचुरली सी बात है कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, वो मरेगा ही, नुकसान दूसरे को भी होगा, ठीक है, बट एक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो कंपटीशन के इस रूल के ऊपर गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी आता है। That is competition exclusion principle. It is given by Gauss and it states that closely related species competing for the same resource cannot coexist. Inferior one will be eliminated. तो एक को eliminate होना ही होगा. And second is resource partitioning. अब हम अगर देखें, हम कहें कि ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई बात होगी तो आप सिर्फ एक ही चीज़ से ज़िंदा रह सकते हो एंड दैट इज़ रिसोर्स पार्टीशनिंग। अब रिसोर्स पार्टीशनिंग आप अलग अलग टाइप से कर सकते हो, तो इट इज़ गिवन बाय मैकआर्थर। तो आप 2 तरह से कर सकते हो। सपोज दैट कि कहीं पे पानी पीने जब जाते हैं, अगर एक एरिया है एक जंगल के अंदर, या तो वो टाइमिंग अलग अलग कर लें कि उस टाइम पे एक खाएगा और सेकेंड टाइम पे सेकेंड इंडिविजुअल 1, एंड सेकेंड ये हो सकता है कि रिसोर्स का जो है वो पार्टीशन कर ले कि एक पार्ट आपका है, ठीक है, और दूसरे वाला पार्ट आपका है, ठीक है। सो इफ़ 2 species compete for the same resource they would avoid the competition by choosing different time for feeding one और different foraging pattern, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक प्लांट के ऊपर 2 स्पीशीज़ रह रही हैं, तो एक जो है वो नीचे वाला रूट या स्टेम पोर्शन खा ले और एक ऊपर वाला लीफ और कैनोपी पोर्शन पर आ जाए। तो इसमें एग्जांपल दिया हमने 5 स्पीशीज़ ऑफ द वार्बलर्स। सो वार्बलर्स की 5 अलग अलग स्पीशीज़ हैं। ये एक वार्बलर है और उसकी स्पीशीज़ हैं बस अलग अलग। सो इन्होंने अपना रीजन डिवाइड कर रखा है। तो सेकंड पैटर्न पे फॉर एजिंग उस पर कि 1 जो है वो ऊपर वाले पोर्शन पे रहेगी, फिर उससे नीचे वाले पे दूसरा। सो दे जस्ट डिवाइड देयर पोर्शन, ठीक है। एक टर्म यूज़ होती है मोस्टली मूवीज़ के अंदर, इलाका, ठीक है। तो अपने अलग अलग इलाके डिवाइड कर लिया उन्होंने, ठीक है, ताकि उनके बीच में लड़ाई ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से रिसोर्स पार्टीशनिंग से आप देखोगे कि एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हमारे घर की बाउंड्री ना हो और सभी ऐसे नॉर्मल रहते हो तो लड़ाई होंगी। तो हमने क्या कर रखा है, अपने घर की बाउंड्रीज़ बना रखी हैं अब कि यहाँ तक घर हमारा है, यहाँ तक नहीं। अगर घर की बाउंड्रीज़ ना होती तो हम क्या करते कि कोई भी प्रॉब्लम होती तो हम कहते कि साथ वाले नेबर ने किया, ठीक है। सो रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गई है, जिसकी वजह से अब एक से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो एक ही रिसोर्स पे ज़िंदा रह सकती हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।